Good morning, students. Today we will go through your science book. Okay. Last class we had started chapter 5, that is rocks and minerals. Topic name is rocks and minerals. Okay. So in this chapter we are discussing the learning plan and about rocks. There are basically divided into three groups. The rocks are divided into three groups. Actually, what is rocks? Rocks are made up of made in the earth crust. Earth surface is an entirely made up of rocks. Okay, it is made up of rocks actually, and the earth is called a rocky planet, and rocks are nothing but natural non-living substance composed of microbes. Okay, composed of minerals. Sorry. So there are many different kinds of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Last time we have discussed about igneous rocks. Okay. So today we will cover the sedimentary rocks, the second part. And before starting sedimentary rocks, I would like to tell you the types of igneous rocks. Igneous rocks का क्या प्रकार है? What are the types of igneous rocks? Before telling the types of igneous rocks क्या है? Now अर्थ का क्रस्ट में क्या है? Large pockets of hot molten rocks है, जिसको मैग्मा बोलते हैं. This magma, due to the tremendous pressure, erupts from the earth's surface through volcano, and that is called lava. Lava is a liquid hot metal, and when lava comes into contact with the atmosphere, then it is solidified to form rocks, which is called igneous rocks. And types of igneous rocks are like intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. As the name indicates, intrusive igneous rocks means when magma cools slowly inside the earth surface, inside the earth crust rather. अर्थ क्रस्ट में जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो igneous rocks फॉर्म होता है, which takes thousands of years to be formed, and as magma cools slowly it is called crystal. मैग्मा जब slowly cool होता है उसको crystal बोलते हैं. Granite is an example of intrusive igneous rocks. Granite intrusive igneous rock का example. And here this is granite. Granite is an extremely hard and durable substance. It is often used in the construction of monuments and buildings. Monuments means प्रतिमूर्ति का statue. Building मतलब building, concrete building. तो इसमें granite यूज होता है. We can commonly see kitchen counters made of granite. किचन काउंटर जनरली ग्रेनाइट से तैयार होता है. ठीक है, किचन का जो स्लैब है. एंड फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्ज आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट. ग्रेनाइट में क्या क्या मिनरल है? फेल्डस्पार, माइका एंड क्वार्ट्ज. देन एक्सट्रूसिव igneous rocks, इसका मतलब क्या है? when magma reaches the surface of earth, अर्थ का सरफेस में जब ट्रेमेंडस प्रेशर नीचे से आएगा और ऊपर सरफेस तक आ जाता है तो सरफेस को फटा के
वो लाभा का हिसाब से वो चारों ओर फैल जाता है। तो when magma reaches the surface of earth usually as volcanic लावा, जो वॉल्केनिक लावा होता है वॉल्कान का थ्रू से वो बाहर आ जाता है। वॉल्कान मतलब आग्नेयगिरी, इन ओडिया इट इज कॉल्ड आग्नेयगिरी। गिरी मीन्स पहाड़, अग्नि मीन्स अग्नि से आग्नेय है, मतलब फायर, मेटालिक फायर, वो इरप्ट होके हिल का थ्रू से जो बाहर आता है उसको वॉल्केनिक लावा बोलते हैं। सो व्हेन मैग्मा रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ usually as volcanic lava it cools and hardens quickly to form extrusive igneous rocks। अंदर में जो इंट्रूसिव igneous rock था वो थाउजेंड्स ईयर्स लगता था, क्योंकि अंदर अर्थ का अंदर में रहता था, इसलिए धीरे धीरे बहुत स्लोली ठंडा होता था, इसलिए उसको इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। बट एक्सट्रूसिव जो रॉक्स है वो अर्थ का सरफेस का बाहर वोल्केनो के थ्रू से आ जाने से वो जल्दी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का थ्रू से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के थ्रू से वो जब कांटेक्ट में आता है बहुत जल्द वो ठंडा होता है, तो उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बासाल्ट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन, प्यूमिस, बासाल्ट ये तीनों होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल। बासाल्ट में क्या है हम पढ़े थे, बासाल्ट इज द मोस्ट कॉमन रॉक, ये एग्जाम्पल बासाल्ट, ये ग्रेनाइट का ऊपर था, ये बासाल्ट का है। बासाल्ट इज द कॉमन इग्नियस रॉक्स, ये कॉमन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इट इज द मोस्ट कॉमन रॉक इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कॉमन igneous rock, that is extrusive igneous rock. It makes up most of the ocean floor। जो समुद्र का चट्टान, जो ओशन फ्लोर, उसमें ये पाया जाता है। बासाल्ट इज डार्क ग्रे इन कलर, इसका कलर डार्क ग्रे, ठीक है ऐसे। इट इज रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन से ये रिच है, मतलब इसका मेन कंपोनेंट्स होता है मैग्नीशियम एंड आयरन। इट इज कॉमनली यूज इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट का मापी ये भी यूज होता है, ठीक है। देन प्यूमिस, प्यूमिस इज ए लाइट कलर्ड रॉक फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। लावा का क्विक कूलिंग में और एक ठो रॉक फॉर्म होता है जिसको प्यूमिस बोलते हैं। पहले हम बासाल्ट का बारे में पढ़े जो वोल्केनिक लावा का द्वारा तैयार होता है, जो कि डार्क ग्रे इन कलर, it is rich in magnesium and iron, but pumice is a light colored rock formed by quick cooling of lava। It has many holes in it, इसका अंदर बहुत होल्स होता है, स्पॉन्जी टाइप का है। formed by the gases trapped in lava while it was cooling। जब ये कूल होता है, जो गैस जो ट्रैप हो जाता है, कुछ एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस ये लावा में ट्रैप होने से वो स्पॉन्जी होता है और वो फॉर्म होता है लाइट कलर में। इट रिजेंबल्स ए स्पॉन्ज एंड इज वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है ये प्यूमिस। इट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज एन अब्रासिव इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। बहुत समय पहले से ये अब्रासिव मतलब जो कटिंग टूल, जो ग्राइंडिंग होता है, जो पॉलिशिंग होता है, उसके लिए यूज होता है पॉलिशिंग इंडस्ट्री, पॉलिशिंग में, और क्लीनिंग करने के लिए अब्रासिव का तौर पर, क्लीनिंग पॉलिशिंग के लिए वो यूज होता है, जिसको अब्रासिव हम बोलते हैं। सो प्यूमिस इज अ स्पंजी रॉक, लाइट कलर्ड रॉक फॉर्म when the gases is trapped in lava and it is very lightweight and it has long been associated or long been used in abrasive for cleaning and polishing। cleaning polishing के लिए abrasives का हिसाब से यूज होता है। डॉक्टर्स यूज पाउडर्ड प्यूमिस टू पॉलिश टीथ को पॉलिश करने के लिए पाउडर्ड प्यूमिस डॉक्टर यूज करते थे। फेल्ड्सपार एंड जिरकन आर सम मिनरल्स फाउंड इन प्यूमिस। जिरकन और तुम्हारा
फील्ड्सपार ये कुछ मिनरल्स जो कि प्यूमिस में मिलता है। देन लास्टली ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन इज ए शाइनी स्मूथ ब्लैक रॉक फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा का कूल होने से ये लास्ट में ऑब्सिडियन तैयार होता है। ये बहुत शाइनिंग बहुत स्मूथ और ब्लैक कलर का लावा कूलिंग होने से ये रॉक फॉर्म होता है। ऑब्सिडियन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस विद वेरी शार्प एज, बहुत शार्प एज में वो पीस करके ब्रेक होता है। बिकॉज ऑफ दिस पीपल इन एंशिएंट टाइम्स यूज्ड इट टू मेक कटिंग टूल्स यूज करने के लिए ऑब्सिडियन प्राचीन समय में आदमी लोग इसको ये यूज करता था, क्योंकि ये बहुत शाइनिंग बहुत शार्प और छोटा छोटा पीस में कट हो जाता था। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पीपल इन एंशिएंट टाइम्स यूज इट टू मेक कटिंग टूल्स। तो अभी हम सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सैंड, क्ले एंड रॉक फ्रैगमेंट्स आर कैरिड बाय विंड एंड वाटर इनटू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन्स जो नदी समुद्र ये जो होता है वाटर बॉडीज बोलते हैं, जल भाग। तो वहाँ पे सैंड और ड्राई सैंड एंड क्ले मतलब मिट्टी, सैंड तो बालू, तो सैंड क्ले एंड रॉक फ्रैगमेंट्स, रॉक का जो अंश विशेष ये सब कैरिड होता है बाई विंड एंड वाटर, हवा और पानी का थ्रू से ये कैरिड आउट होता है सैंड क्ले और रॉक फ्रैगमेंट्स। दे सिंक टू द बॉटम एज सेडिमेंट्स, ये जो जलभाग का बॉटम में सेडिमेंट्स का हिसाब से नीचे रहता है। ओवर टाइम मल्टीपल्स लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट वन ओवर द अदर। तो ओवर टाइम का हिसाब से मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स का मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्या होता है एक्यूमुलेट करता है वन ओवर द अदर, एक का ऊपर एक, ये मल्टीपल लेयर क्या करता है वो एक्यूमुलेट करके रखता है। सो सैंड क्ले एंड रॉक फ्रैगमेंट्स they are carried out by wind and water into water bodies, and in water bodies these sand clay and fragments rock fragments they are deposited as sediments, and over time multiple layers of these sediments are accumulated over one another, माने एक का ऊपर एक ये जो सेडिमेंट्स जमा होता है। The layers on top compress the bottom layer, टॉप लेयर उसको बॉटम लेयर को कंप्रेस करता है। क्या करता है कंप्रेस मतलब प्रेशर देता है, वो दब के रहता है। The continuous pressure over thousands of years cements the bottom layer together, which then hardens to form sedimentary rock। तो हजार वर्ष में क्या होता है ये जो ऊपर लेयर नीचे लेयर को दबाने का द्वारा या प्रेस करने का द्वारा क्या होता है ये सेडिमेंटरी रॉक्स फॉर्म होता है। ये पूरा सीमेंट्स हो जाता है और सीमेंट का माफिक पत्थर का माफिक बॉटम लेयर जॉइंट हो जाता है। सो द कंटिन्यूअस प्रेशर ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स सीमेंट्स द बॉटम लेयर टुगेदर। तो बॉटम लेयर को पूरा सीमेंटेड कर देता है, पूरा जमाट बांध देता है, पूरा इकट्ठा कर देता है, जिसको सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सेडिमेंटरी रॉक्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स फॉल टू द फ्लोर ऑफ द सी आफ्टर द क्रिएचर्स डाई। समुद्र में बहुत सी क्रिएचर्स रहते हैं, तो कभी वो क्रिएचर का डेथ हो जाने से उनका जो बॉडी का आउटर पार्ट वो समुद्र का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे वो जमा होता है। ठीक है, तो सी क्रिएचर्स फॉर एग्जाम्पल कंच जिसको हम शंख बोलते हैं, वो मर जाने के बाद उसका जो हार्डर सरफेस वो समुद्र का
जो चट्टान में गिरता है, पानी में नहीं, पानी का निचला हिस्सा जहाँ जमीन होता है वहाँ गिरता है। वैसे करके बहुत सारा समुद्रिक जीव होता है जिसका मौत का बाद उनका बॉडी वहाँ जमा होता है। तो वो फ्लोर में, सी फ्लोर में जमा होने से आप when the cells form a thick layer they become compressed and form rocks। वो सेल्स जब थिक लेयर होके जमा होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और रॉक फॉर्म होता है। ठीक है, वो भी सेडिमेंटरी रॉक। तो दो चीज हुआ, एक मिट्टी और बालू, सैंड एंड क्ले along with the fragments of rocks mixed together form a layer in the surface of the water body which is called the sediments. Similar layers, multiple layers of these form on the water bodies or on the sea, and the top layer creates tremendous pressure to the bottom layer, as a result which the sediments are compressed, पूरा compressed हो जाता है, दब जाता है। Over 1000 years this bottom layer is cemented and forms the sedimentary rocks। ये one example। दूसरा example क्या है? The creature of the sea, समुद्र का जो जीव है, सामुद्रिक जीव, उनका डेथ होने से वो सब प्राणी का जो आउटर बॉडी है, हार्ड सेल है, वो डिपोजिट होता है सी का सरफेस में। सी का सरफेस में नहीं, पानी का सरफेस नहीं, मिट्टी का सरफेस, लास्ट बॉटम में, बॉटम सरफेस में डिपोजिट होता है। वैसे करके बहुत सारा जीव का जो अवशेष आउटर बॉडी वो सब जमा होके वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और थिक लेयर ऑफ सेल्स क्रिएट होता है, जिसका चलते वो कंप्रेस्ड होके वो भी सेडिमेंटरी रॉक्स तैयार होता है। तो दो किस्म का सेडिमेंटरी रॉक्स तैयार हुआ। तो सेडिमेंटरी रॉक्स आर grouped according to the way they are created and the size of the fragments they contain। तो ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स, ये इसका जो विभाग हम करेंगे ये डिपेंड करता है कि कैसे ये फॉर्म होता है, क्या साइज है। conglomerates, sandstone, shale and limestones are examples of sedimentary rocks। ये कॉन्ग्लोमरेट हुआ, सैंडस्टोन हुआ, चूना पत्थर, सेल हुआ एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सैंडस्टोन ये एक टाइप का स्टोन, सेल होता है सामुद्रिक जीव का जो आउटर सेल, और कॉन्ग्लोमरेट, ये सब सेडिमेंटरी रॉक्स का एक एक एग्जाम्पल है। तो कमिंग टू कॉन्ग्लोमरेट, conglomerate is made up of large rounded rock fragments such as pebbles, gravel and boulders। boulder हुआ, बड़ा बड़ा pebbles हुआ, जिसको बाली गरड़ा इन उड़िया हम बोलते हैं, और ये सब gravel, इसका द्वारा ये कॉन्ग्लोमरेट तैयार होता है। कॉन्ग्लोमरेट इज मेड अप ऑफ लार्ज राउंडेड रॉक फ्रैगमेंट्स, रॉक का जो बड़ा बड़ा अंश विशेष उसको लेके, जैसे कि एग्जाम्पल पेबल्स हुआ, ग्रेवल हुआ, बोल्डर, इसका थ्रू से कॉन्ग्लोमरेट रॉक होता है जो कि सेडिमेंटरी रॉक। द रॉक फ्रैगमेंट्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय सैंड एंड मिनरल्स। ये रॉक फ्रैगमेंट्स क्या होता है, ये सैंड और मिनरल्स के द्वारा सीमेंटेड हो जाता है, सीमेंट सा बन जाता है। कॉन्ग्लोमरेट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कॉन्ग्लोमरेट यूज होता है, ये वाला। Then sandstone, sandstone is made up of sand grains, sand grains द्वारा sandstone तैयार होता है। It is composed mostly of quartz, quartz से तैयार होता है, quartz एक मिनरल, quartz से sandstone तैयार होता है। तो sandstone is made up of sand grains, sand grains से sandstone तैयार होता है। It is comprised of mostly of quartz, it is soft stone, sandstone is a soft stone, क्वार्ट्ज से भी तैयार होता है। सैंडस्टोन्स आर रेजिस्टेंट टू सलाइन एयर,
जो लूनी हवा होता है समुद्र पानी, नमकीन पानी, तो उसका जो हवा होता है नमकीन हवा, तो सलाइनी एयर को ये रेजिस्ट करता है। सैंडस्टोन्स आर रेजिस्टेंट टू सलाइनी एयर व्हिच मेक्स देम परफेक्ट फॉर बिल्डिंग एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सीशोर बिल्डिंग। सीशोर बिल्डिंग का जो बाहरी हिस्सा को बनाने के लिए सैंडस्टोन यूज होता है। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू द सलाइन क्या है, एयर। ओके, सो दे आर ऑल्सो हीट रेजिस्टेंट। सैंडस्टोन हीट रेजिस्टेंट ये है, स्टोन है, पत्थर है, वो बालू सैंड ग्रेस उसका अंदर है, और जिसका अंदर क्वार्च भी है, सैंड ग्रेस है या मेनली क्वार्च है जो कि सॉफ्ट स्टोन है। ये सब सॉफ्ट स्टोन सब मिलके कंप्रेस्ड होके सैंडस्टोन तैयार होता है। एंड दे आर ऑल्सो नॉट ओनली द सैंडस्टोन्स आर नॉट ओनली resistant to saline air, they are also resistant to heat, they are heat resistant and they are also used for making fireplace। जो चूल्हा को बनाने के लिए सैंडस्टोन यूज होता है बिकॉज इट इज हाईली हीट रेजिस्टेंट। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड एंकर वैट आर सम फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट विथ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन ने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में, कुतुब मीनार ये भी न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में ये जो दोनों एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है ये तैयार हुआ सैंडस्टोन में। तो एशिया के इंडिया में रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, व्हाइल एंकर वाट ये कंबोडिया देश में है। एंकर वाट ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स दैट आर मेड ऑफ ऑल्सो सैंडस्टोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैंडस्टोन से ये मॉन्यूमेंट्स तैयार है। कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं कॉन्ग्लोमरेट। सो कॉन्ग्लोमरेट सैंडस्टोन ये दो टाइप का सेडिमेंटरी रॉक। अनदर दो टाइप का सेडिमेंटरी रॉक है सेल एंड लाइमस्टोन। सेल क्या है? सेल इज मेड अप ऑफ हार्ड लेयर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट। सेल ये क्या है? ये सेल इज मेड अप ऑफ हार्डेड layers of very fine particles of clay and salt. Clay means कादुआ, मिट्टी, and silt means पट्टू मट्टी। तो नॉर्मल मिट्टी और जो सिल्ट, तो क्ले और सिल्ट इसको मिलके क्या हुआ? SHALE सेल तैयार होता है। फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले एंड सिल्ट, क्ले का फाइन पार्टिकल, सिल्ट का फाइन पार्टिकल का जो लेयर बनता है हार्डेड लेयर, उससे सेल SHALE सेल जो कि एक सेडिमेंटरी रॉक तैयार होता है। सो सेल इज द थर्ड टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स व्हिच आर मेड ऑफ हार्डेड लेयर्स ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। इट इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट और ब्रिक तैयार करने के लिए ये सेल यूज हुआ। सो दिस पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट, दिस पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ सैंडस्टोन एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ सेल। एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट द लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन फॉर्म्स फ्रॉम द accumulation of cells of dead sea creature। देखो SHALE सेल मीन्स इट इज ए सेडिमेंटरी रॉक। SHELL cells means that is the outer body of dead sea creatures। So limestone forms from the accumulation of the cells of the dead sea creatures। मृत सामुद्रिक जीव का जो बाहरी हार्ड हिस्सा है उसका द्वारा लाइमस्टोन तैयार होता है, जो कि एक सेडिमेंटरी रॉक। लाइमस्टोन इज इजी टू कट इनटू ब्लॉक्स। लाइमस्टोन उसको ब्लॉक का हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। वेरी इजी टू कट इनटू ब्लॉक्स, बड़ा बड़ा ब्लॉक्स का हिसाब से वो लाइमस्टोन इजीली कटिंग हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्विंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन इट। कॉम्प्लेक्स कार्विंग ये लाइमस्टोन कटिंग में होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग्स
and in the manufacture of cement. like सेल जैसे तैयार होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए, लाइमस्टोन भी सीमेंट बनाने का प्रमुख जो कच्चा माल वो लाइमस्टोन होता है, बिकॉज इट इज हाईली नेसेसरी टू मेक सीमेंट थ्रू लाइमस्टोन. सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोड्स तैयार करने के लिए लाइमस्टोन यूज होता है, बिल्डिंग तैयार करने के लिए लाइमस्टोन यूज होता है, एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट तैयार करने के लिए भी लाइमस्टोन यूज होता है. सो स्टूडेंट्स, I have briefly covered about rocks. What is rocks? How many types of rocks are there? In last class, I had explained you about the first type of rock, that is igneous rocks, which are of two types, that is intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. And this class we have explained about sedimentary rocks, what is this and what are the types of sedimentary rocks, that is conglomerate, sandstone, shale and limestone. Okay students, please go through this. In the next class I will conclude the remaining portion of this chapter 5, which is rocks and minerals. Thank you.